I formally welcome you all to this Vikalp Sangam in Ladakh. Over the last 3-4 years, we have been talking that agriculture and food, the land-based economy, that's the most important one actually if you want to preserve culture and make our people, the people of Ladakh, happy and healthy. So that is why we thought that it's really important to talk about the food and food system and agriculture. And we have a very enthusiastic and energetic executive councillor in Hill Council. So that really helped a lot in bringing this together. So I really appreciate that. Thank you so much, Chospelle. It's very important that when we do development, all the developmental initiatives, they should be in sync with local culture. It should not harm the local environment and ecology. And so the Vikalp Sangam is a process of bringing people together on one platform to talk about all of these different initiatives and then have a dialogue together, sharing of experiences and learning together actually. So when we talk about food production, food and agriculture, it's mostly about 3 broad things actually. One is the production system, the second is the distribution system, and the third is the consumption. So how we do these 3 things sensibly and sustainably. That's the key thing that we would be discussing today. The other objective of these 2 days, the Sangam, is also to look at the Mission Organic Development Initiative. It's an excellent document, no doubt about it. There are so many good things, but still I think we felt that some things need to be added in. We have economic well-being, but there should also be ecological well-being, the social well-being, and cultural well-being. The other thing is that Chospelle mentioned that we have this Paramparagat Krishi Vikas Yojana. How we can dovetail with that with the Mission Organic Development Initiative. That again is an excellent, I think, scheme. I haven't gone through all the points, but we can integrate that into the Mission Organic Development Initiative and then try to implement that and basically route all the funding that are coming to develop agriculture in Ladakh through the Mission Organic Development Initiative. So that becomes the central, the pivotal thing, and then everything revolves around that. ये ऐसा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे कंटैक्ट हमारे एनजीओ एंड सिविल ग्रुप्स कर रहे हैं, इनको सपोर्ट हम गवर्नमेंट की तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर रहे हैं, और सब इधर एक प्लेटफॉर्म पे आके जो विकल्प संगम का थीम है उसको हम कैसे एक्सप्लोर करें। एवरीडे जो हो रहा है उसको ना जाके एक ऑल्टरनेटिव, हमारे इसका नाम लद्दाख ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड रखा है। आगे आने वाले टाइम में मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है हम चाहते हैं कि और वाइब्रेंटली सोसाइटी में डिस्कस हो। जब भी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा वो सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स एंड अदर एनजीओज फोरम पे इसको डिस्कस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसको एक अच्छा शेप दे पाएंगे, इसमें अपना भी रोल ढूंढ पाएंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव में एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल होगा, सिविल सोसाइटी का क्या रोल होगा, एनजीओज का क्या रोल होगा, फार्मर का कैसे रोल होगा, और फार्मर की जो कंसर्न्स है वो ऑन बोर्ड कैसे आए हैं। ऑर्गेनिक मिशन का जो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट जो बना है 2 साल पहले, उसमें ये जो एक डिसीजन हुआ है वो बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजन है। तो लेकिन इसको हम कैसे, जैसे कि कुंजांगले ने बोला कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करें इसको, और इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या ध्यान में लेना होगा हमें, बाहर की गलतियां ना करें हम, वो कैसे ना करें, बार्ले बकवीट वगैरह जो है वो भी चालू रखें, कुछ नई चीज़ें जैसे आप ग्रीन हाउसेस से कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से ये ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो ये एक ये मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट है राइट नाउ, जिसमें इस संगम का और संगम के साथ में जुड़े हुए और आपके मिशन ऑर्गेनिक उसके साथ भी जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको हम एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो जो 3 बातें नामग्याल ने भी कही, सेफ्टी, कि खाने में केमिकल्स ना हो,
सिक्योरिटी मतलब सबके पास पूरा खाना हो, और सोवेरेंटी जो उन्होंने बात की वो एक्चुअली दुनिया भर का एक फार्मर्स का मूवमेंट हर जगह पे चल रहा है कि ज़मीन, पानी, बीज और ज्ञान जो नॉलेज जो होता है उस पर हम लोगों का कंट्रोल हो। किसी ना तो कंपनी का कंट्रोल होना चाहिए, ना ही सरकार का भी कंट्रोल होना चाहिए, फार्मर्स का अपना कंट्रोल उस पर हो। 추мет나 답해서 그런 붙여서 그러나 해야 돼. 뒤오나 오르가닉 주인자로 말이다. 오르가닉 붙여랑말랑하다. 그만 동시에나 다음 말이. 오데 땅간에 제목을 하고 주고서. लेकिन अभी हम सबको मिलके डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, FRL, अभी ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो हम सबको मिलके कमेटी बना के गांव-गांव में जाके लोगों को समझाना होगा इस सिचुएशन में, मतलब ज़मींदारी करना कितना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक पे जोर लगाना कितना ज़रूरी है, सबको समझना पड़ेगा। ये ज़रूरत क्यों पड़ा कि केमिकल फर्टिलाइजर हमने क्यों यूज़ किया, अभी दोबारा हमको ऑर्गेनिक की ज़रूरत क्यों पड़ा। तो थोड़ा सा इनको सबको फार्मर, जितने फार्मर आप गाँव में कोई कैंपेन करें, क्योंकि इनको समझना पड़ा कि ऑर्गेनिक हम क्यों करने जा रहे हैं। लोकल बोलेंगे तो लोगों की सोच में था ये लोकल है तो हम वैल्यू कम ही करते हैं। अब जैसे कि ट्रेडिशनल जो भी हो, चाहे फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फूड में हो या चाहे कुछ में भी हो, उसको थोड़ा हमें कैसे मॉडर्न करें, उसको मॉडर्न में कैसे ब्लेंड करें। अभी हम ट्रेडिशनल बोलते, लोकल बोलते, तो हमें हमारे माइंड में यही डायरेक्ट आता है ये तो लोकल है, इसका कुछ वैल्यू नहीं आता है। हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके जाना है। हमें एक कम्युनिटी में एक ही जैसे, अगर सब लोग एक ही जैसा एक ही सब्जी अगर पूरा लगा में उगाएंगे तो कैसा लगेगा, चलेगा। तो डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन में हो या कल्चर में। लद्दाख में ना बर्डे जा नहीं रहा, सबके पास पड़ा होगा, वो तो सबके पास पड़ा होगा। बर्डे का मार्केट नहीं है, बिकॉज इशू बहुत हर जगह है, उसका रेट भी कम है। रेट कितना है? ये 25 रुपये की 30 रुपये किलो है शायद। दैट इज़ टू लेस अगर देखा जाए तो। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं और लोकलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें 25 रुपीज़ अ केजी इज लाइक उसको उस पर वेरी लेस, उस पर सोचना पड़ेगा। ज़्यादा बस के थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ कि फार्मर को थोड़ा सा ज़्यादा रेट है कि हम लोग लिखते रमना होंगे तो वहाँ से ले रहे हैं, तो उन लोगों को 50 रुपये, पहले भट्टी का 100 रुपये मिलता था, भट्टी में 2 केजी, हम लोग अभी 50 रुपये दे के खरीद के ये अभी ये रोस्टेड बार्ली और barley flour भी हम लोग सेल कर रहे हैं। So Kagya Urgen, who was supposed to be here, he was telling us that he is going to reduce the production of barley with time because obviously it costs him more to even grow it because of labor. Second, they used to use government used to take barley seeds from them initially, like last year. So now government is taking seeds from Srinagar. So they are saying like obviously we are not getting as much as profit we used to, so we are going to reduce it. मिड डे मील हो, PDS में जो हम इसमें हमारा बढ़ जाएगा तो हमें अच्छा रेट मिलेगा। रेट की भी बात है, बच्चों की न्यूट्रिशन सब कुछ हो जाएगा। ये बढ़ने का इशू हर लद्दाख में है कि एक्सेप्ट गया में नहीं है कि रेट कम है, जी जाता है हर जगह पे। जैसे शाम एरिया में अपना एक सीट्स होता है, तो अगर है ना सब लोग एक जगह इकट्ठे करके एक सीट्स बैंक बनाएगा, तो इले में ये सिस्टम अभी तक नहीं है लद्दाख में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि इसको प्रिजर्व करे तब ऑर्गेनिक कर सकते हैं। यार मैं देखूं तो हाँ नुब्रा में ये सारे क्रॉप मिल रहा है जो, क्योंकि अलग अलग गांव का, हाँ जी फूड मैप जैसा, क्योंकि अलग अलग गांव का अलग अलग सीट का एक वो होता है ग्यालतुम उसको ग्याला खची यूं तो बोलते क्या। आई थिंक वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी वेरी मच बेटर। दूसरा ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि केवल ऑर्गेनिक इनफ नहीं है। जैसे सिक्किम ने कर दिया 100% ऑर्गेनिक, लेकिन उसका काफ़ी सारा खाना जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब अगर वो एक्सपोर्ट मार्केट ख़त्म हो गया तो सिक्किम का एग्रीकल्चर भी कोलैप्स हो जाएगा। तो कैसे हम लोकल मार्केट, कुंजांगले ने ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन की बात की, हम कैसे लद्दाख के आसपास के राज्यों का लोकल मार्केट कैसे क्रिएट करें ताकि मान लीजिए नेक्स्ट टाइम कोविड आ गया या नेक्स्ट टाइम कुछ क्लाइमेट की वजह से रास्ते बंद हो गए, जो भी हो गया, कम से कम लोगों की आजीविका और फूड सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म नहीं होगी।
हमें गांव के लेवल पे भी गांव वालों को पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज में ऐसा भी है कि उनको मतलब जो भी उनके एरियाज में मिलते हैं, पहाड़ों में काफ़ी सारे सब्जियां मिलते हैं, उनको उनके ही वहाँ पे जो मिलता है उसका जो है उसमें कितना प्रोटीन या कुछ भी हो उनके बारे में उनको नहीं मालूम होता है। लद्दाख में अभी क्या हो रहा है कि जितना भी हम ग्रीन हाउस के सोचते हैं वो हम विंटर के हिसाब से सोचते हैं। एक्चुअली हम लद्दाख में विंटर में कुछ नहीं होता है, इसलिए हमें ग्रीन हाउस प्रमोट करना है। लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, एक दो स्टूडेंट ने इसमें PhD भी किया हुआ है, हमें सिर्फ ग्रीन हाउस को सिर्फ सर्दियों के हिसाब से नहीं देखना है। एक्चुअली आपको इसको इक्वली आपको समर में भी इसका बहुत यूजेस है। मैं जैसे एक लास्ट ईयर हमारा एक ट्रायल था इसी ग्रीन हाउस के अंदर, हमने कुकुम्बर लगाया था, एक ओपन में एक हमारा ग्रीन हाउस में। तो कुकुम्बर पर प्लांट बाहर जो था एक पौधा से हमें 1.5 kg आउटसाइड जो हम नॉर्मली प्रैक्टिस करता है, वही सेम चीज़ ग्रीन हाउस के अंदर 4.5 kg है। अब खुद सोचो, जस्ट कंपेयर 1.5 kg एंड 4.5, एक फार्मर को कितना एक्चुअली इससे पैसा हो सकता है। खाली एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड कंप्लीट नहीं होगा। जो पद्मालय ने जो बात कही कि विलेज में अगर लोगों को रखना है या वापस यूथ को अट्रैक्ट करना है तो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रो, वो भी मिशन ऑर्गेनाइज में है थोड़ा सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, स्क्वाश बनाने का हो, जैम बनाने का हो, पिकल्स बनाने का हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। आपके जैसे योस ना वो है। तो ये डिसेंट्रलाइज लेवल पे, विलेज लेवल पे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह क्रिएट हो जाती हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी यूथ का अट्रैक्शन होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट वहीं पे अगर मिल रहा है उनको तो उसका मार्केट भी किया जा सकता है। कि जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में तो राउंड द ईयर वो ग्रीन होते हैं और इतने सारे ड्राई मैटर वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, पूरा जंगल है, लीव्स है, इतने उनको कंपोस्टिंग के लिए। यहाँ हमारे पास सिर्फ अगर हम करें भी तो वो सिर्फ माउंटेन रिसोर्स ही होंगे जो इन लाइफ स्टॉक के थ्रू आएगा, तो उस पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, जो भी जितने लाइफ स्टॉक रिलेटेड हैं उनको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ले डिस्ट्रिक्ट में आज से 2-3 साल पुराना का डाटा है, तो ले डिस्ट्रिक्ट में 2.8 लाख हमारा लाइफ स्टॉक है एक्सक्लूडिंग पोल्ट्री। अगर हम जैसे इसको मोटा एक्चुअली जस्ट डिवाइड कर दे, क्योंकि लगभग हमारे पास 10,000 के करीब हमारे पास कल्टिवेबल है, तो उसके हिसाब से देखें तो 1 हेक्टेयर के लिए लगभग आपका 20 एनिमल्स के करीब आ जाता है शायद। हाँ, एक कनाल के लिए वो देखना पड़ेगा, वो उसका लेकिन काफ़ी मतलब लाइफ स्टॉक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जिस जगह आपका कल्टीवेशन होता है वहाँ पे आपका लाइफ स्टॉक नहीं है। In my grandfather place in Spito, like when I was child, it almost we have a 4 zoo. Zoo is the mixture of yak and that other. Right now, in entire village, there is only 13 zoos left over. It's because like we just doing everything for ourselves, like product, like profit and everything, but we never think about our tradition things and all, right? And now here, they for the machine they cost like 1 hour is like 800 rupees for 1 hour, and the cutting system is only depend on the skillful or sophisticated person. If we during our childhood time we use the zoo and everything, we able to see, we able to learn, we are able to understand the relation between the soil and the farmer. Right now we only think about the money and the farmer. अगर ऑर्गेनिक अगर हमें करना है तो ऑर्गेनिक बोर्ड होता है, ठीक है, वो उसमें किताब में होगा, ठीक है, तो एक एपेक्स बॉडी होगा। आप तो यूटी लेवल पे होना चाहिए, करगिल और ले दोनों के लिए एक बॉडी होगा, वो पूरा करगिल को ऑब्जर्व करेगा और ले को ऑब्जर्व करेगा। करगिल में एक छोटा सा और एक बॉडी होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हमें ये सक्सेसफुल करना है तो एक बॉडी और बनाना चाहिए। उस बॉडी में होली सोली डिपार्टमेंटल जितने भी डिपार्टमेंट हो उनसे डिपुटेशन पे या जैसी भी हो, आई डोंट नो दैट इज गवर्नमेंट इश्यूज, तो वो करके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल और रिसर्च स्टेशन से रेप ला के एक बॉडी बनाना पड़ेगा कि वो लोग इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो मेरे ख्याल से ग्रास रूट पर जिन्हें विलेजर्स एक्सपर्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, फिर ऐसे में इंटरेस्टेड लोग होता है, तो वुमेन फोक होता है, बहुत कुछ होता है, फिर है ना सबसे मिल के अगर पॉलिसी बनाए तो उन सबसे राय लेगा। तो मान लो किसी कम्युनिटी को लेके, किसी इंटरेस्ट को लेके उनको आपस में जोड़ सकते हैं। मान लो जैसे हमारे
डिपार्टमेंट को एक स्कीम आता है, मान लो उसमें FPO बनाने का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मान लो उसमें ये कॉलीफ्लावर ग्रोअर्स का एक ग्रुप बन सकता है, तो वो डिफरेंसेस होने के बाद भी फार्मिंग पे आए या कुछ करने पे आ जाए, तो वो सब इकट्ठा होके वो उसमें हार्मनी के साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही गोल के लिए वो काम कर सकता है. दिकना जैसे तंग काउंसलर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स क्यों दे इंगातंग दिक आज डिस्कशन हो सुनुपा मोदी स्कीम का मिशन ऑर्गेनिक का इन मिशन ऑर्गेनिक ना चीज दुखता इंगातंग इना जो पॉइंट खचिकता ना protected cultivation, creation of water conservation, vermi compost, chochas, oz ikoni du chocha in zere khoni zere no bya. Ta du chochas in na chief ya chosen, vermi compost chief ya khonsen, organic chief ya khonsen, chief ya in zere jaspo. In chief ya in zena do yod met kya dina. तो आयु में सबसे ज़्यादा सीडलिंग्स और ये वेजिटेबल सीडलिंग्स जितने भी है वो यही उगाते हैं सर. तो मोस्टली दूसरे गांव में अगर हम देखेंगे तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या इस ग्रीन हाउस में ही उगाते हैं, क्योंकि मार्च में काफ़ी ठंड रहता है, क्योंकि यहाँ पे सीज़न जो है मिड अप्रैल के बाद ही ये जो वेजिटेबल्स ये क्रॉपिंग सीजन शुरू होता है. तो यहाँ पे 1 महीना पहले लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मार्च 15 तक लेके चलिए, मार्च 15 से ही यहाँ पे सोइंग वगैरह शुरू हो जाता है. वो भी अगर हम जब वेजिटेबल सीडलिंग्स हम लगाते हैं तो फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इतना नहीं लगाते, वो हम लगाते हैं बाहर बिल्कुल इस ओपन फील्ड पे. तो अर्ली फ्रॉस्ट इफेक्ट नहीं करता है? नहीं करते, क्योंकि उस पर क्या करते हैं सर, ये जो पॉलीकार्बोनेटेड शीट है ये यूवी स्ट्रीम होता है ना, स्टेबलाइज ये वाला यूवी अल्ट्रावायलेट ये स्टेबलाइज्ड है, ये उसके ऊपर कवर करके रखता है फुली फॉर 1 मंथ. जैसे ही मतलब हीटिंग रेस ये हो जाता है, गर्मी ज़्यादा तो फिर दिन को फिर इसको निकालते हैं ऐसे मतलब ओपन कर देता है, फिर शाम को फिर लगाते हैं, फिर ओपन, फिर शाम, ऐसे ऐसे करके जब तक टेम्परेचर जो है मेंटेन ना हो. उसके लिए हमारे सामने आंखों के सामने क्या है, टूरिज्म है, फार्मिंग भी है, टूरिज्म भी है, लेकिन इस दोनों को कैसे जोड़ के जो है क्या मॉडल होना चाहिए, उसको लेके एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट अभी नए लोगों के बीच में डिस्कशन में है. डिस्ट्रीब्यूशन में बकवीट फेस्टिवल हो गया, बकवीट को एज ए रिसोर्स मान के तो उसी को एक्सप्लोर करके इसी तरह हर एक विलेज में अपना कोई वो होगा तो उसको एक्सप्लोर करने की चीज़ें तो एक्सप्लोर करो और टूरिज्म के साथ लिंक करो, तो वो मुझे लगता है एक डायरेक्शन देने की वो है, तो मुझे हो जाएगा सर. अभी टूरिज़्म पे भी कुछ पॉलिसी बन रही है आप कह रहे थे, तो वो भी देखना होगा, और ख़ासकर अगर एग्रो टूरिज़्म को बढ़ाना है तो उसको क्या पॉलिसी और गाइडलाइंस जिसमें कि ये सारी बातें आ जाना कि उसमें लोकल कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जो गरीब लोग हैं खासकर उनका फ़ायदा है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का इशू है, ये सब चीज़ें कुछ, तो वो मुझे लगता है कि उसकी अगर ऑलरेडी वो ड्राफ्ट पॉलिसी में नहीं है, हमें अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा. There are already organizations and NGOs like I know SLC, WWF, there are probably others who are already running homestays where to some extent it is community based tourism. They are getting a good benefit from the tourism. So using those available avenues, can something be initiated after taking suggestions from them as to what is it that will work for the family? Most people will be thinking कि अच्छा इस जगह पे जाके हम क्या पा सकते हैं, क्या कंज्यूम कर सकते हैं, what is in fashion. So like organic has become a fashion and a fad in a lot of big cities now. So लोग ये नहीं सोच रहे कि हम मतलब what it is helping. Okay, it's a fashion. All elites eat organic, go to organic shops. So let's go to an organic shop. तो जो हमें सोचना पड़ेगा कि हर कोई इतना सोच नहीं रहा है और ना सोचेगा और ना इतना सोच उस पर स्पेंड करेगा. So how do we actually cater to that group which is not going to ever think about these things? जब मैं यहाँ आ रही थी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो यहाँ आना चाहते थे और रूरल एरियाज़ में स्टे करके कंट्रीब्यूट करके रहना चाहते थे, पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम थी और ये आइडिया था कि यहाँ पे ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है और जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कि ऑनलाइन जाके ऐसे नहीं पा सकते कि ठीक है ये विलेज में हम जाके स्टे कर सकते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं था. तो इसीलिए वो
यहाँ नहीं आ सके, पर हिमाचल उत्तराखंड वहाँ जाके रह गए। उस तरफ किस तरह से सोसाइटी पूरा खुशी की तरफ, वेलबींग की तरफ कैसे बढ़ रहा है, उसके लिए भी हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि एक इंडेक्स जैसा बने, वेलबींग इंडेक्स, ताकि यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं एग्रीकल्चर, फूड और बाकी भी जो प्रोग्राम्स हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा असेसमेंट इवैल्यूएशन पर, जैसे आपकी कमेटी है वो असेस करे कि असल में लोगों की हैप्पीनेस बढ़ रही है या नहीं, सेफ खाना मिल रहा है या नहीं, सबको खाना मिल रहा है या नहीं, फार्मर्स जो हैं वो उसको फूड सिक्योरिटी, फूड सॉवरेंटी, स्वराज जो है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ट्रेडिंग ठीक से लोकल मार्केट्स ठीक से बन रहे नहीं बन रहे। तो असल में जो इंडिकेटर्स क्या हैं इसके, 50% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक, वो तो इंडिकेटर्स ऑलरेडी हैं आपके पास, लेकिन असल में लोगों को, छोटे से छोटे किसान को फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लोग खुश हैं या नहीं हैं, जानवर खुश हैं या नहीं है, इस प्रकार का एक इंडेक्स जो है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो ये कहना चाहूँगा कि आपके रिकमेंडेशंस और सजेशंस हमें दे दीजिए, ताकि हमारे डिपार्टमेंट बैठ के उसको गो थ्रू करे और एक प्रैक्टिकलिटी और इम्प्लीमेंटेशन और कहाँ पे किस स्कीम्स के अंदर फिट कर सकते हैं वो भी हम देख पाए। हाला तो मेरा कि इसमें से जो भी एक्शन पॉइंट्स निकलते हैं, इसको एक्शनेबल बनाने के लिए लद्दाख के हर रीजन में कुछ कंसल्टेशंस की जाए। हाँ, वो तो करेंगे अगले 1-2-3 महीने में अगर हो सकते हैं कंसल्टेशंस, उसके हिसाब से फाइनल जो रिकमेंडेशंस वो बनेगा, उस एक्शन प्लान को इसी कह रहे हैं कि अगले 2022-23 का जो बजट बनेगा वो उसमें जाएगा। तो हमारे पास ये 3-4 महीने हैं जिसमें कि इस प्रकार के पंचायत या लोकल लेवल पे कंसल्टेशंस भी हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बट दिस इज़ नॉट द एंड, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। एंड आई बिलीव कि हम अगर एक साथ आए तो जब तक हम साथ नहीं आएंगे हमें मुश्किल लग रहा है ये कैसे अचीव होगा, ये मिशन जो जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन प्लान्स जितने भी हमने बनाए हैं वो कैसे हमें बिल्कुल एक क्या बोलते हैं लागू होते दिखेगा। तो मैं अपनी तरफ से मैं एक बार फिर से मैं जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम्स हैं उसको थैंक यू कहना चाहूँगा, और स्पेशली खासतौर और मैम कुंजल ने कहा दवा का मंजूर एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स और उत्तर प्रदेश की जितने टीम मैम कुंजल ने एंड मैम कुंजेस ले और भी जितने भी नेचर कंजर्वेशन से आए हैं, थैंक यू। तो हमें काफ़ी स्टेक होल्ड पे है, बट मुझे पूरा उम्मीद है हमारे सबके पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट को देख कर कि आगे आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।